Hello everyone, I am Prem Kumar Patle from KV number 1 Chhindwada. Dear students, I am here along with the second part of Kings and Chronicles. Dear students, in this video you will know about the Akbarnama and the Badshah and we will get an information regarding ideal kingdom. We will see a unifying force and we also read about the capitals and the code, as well as we will see the titles and gifts. Dear students, among the important illustrated Mughal chronicles, the Akbarnama and Badshah are the most well known. In both manuscripts contain an average of 150 full or double page paintings of battles, sieges, hunts, building construction and court scenes. Definitely students, we will get maximum information through Akbarnama and Badshah. The author of the Akbarnama, Abul Fazl, grew up in Mughal capital of Agra. He was very talented. He was widely read in Arabic, Persian, as well as he knows about the Greek philosophy, and he was a scholar in Sufism. That's why he was a forceful debater. He was not only the forceful debater but also he was an independent thinker. उसकी ये जो क्वालिटी थी वो अकबर को काफ़ी पसंद आई एंड ही अपॉइंटेड हिम as an advisor and a spokesperson for his policies. One major objective of the emperor was to free the state from the control of religious orthodoxy. अकबर चाहते थे कि जो religious orthodoxy उसके साम्राज्य में हैं वो उससे वो फ्री होना चाहते थे. In his role as court historian, Abul Fazl both shaped and articulated the ideas associated with the reign of Akbar. इस तरह से जो अबुल फजल थे वो काफ़ी विद्वान व्यक्ति थे जिनकी बुद्धिमत्ता का फ़ायदा मुग़ल सुल्तान अकबर उठाना भी चाहते थे. बच्चों, आपके स्क्रीन पर एक अकबरनामा का एक इमेज दिखाई दे रहा होगा. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द इमेज ऑफ अकबरनामा. इन नेक्स्ट स्लाइड, that is information related to the Akbarnama. Abul Fazl started his work on Akbarnama in 1589 and he took 13 years to complete this work. He repeatedly revising the draft. Abul Fazl prepared this chronicle with range of sources like actual records of events, official documents, oral testimonies of knowledgeable person. Okay, the Akbarnama is divided into 3 books, of which the first 2 are chronicles. The third book is the आईने अकबरी. प्यारे बच्चों, 1589 में 1589 में अबुल फजल ने अकबरनामा पर 13 वर्षों तक कार्य किया और इस दौरान उसने कई बार प्रारूप में सुधार भी किया और साथ ही साथ उसने इतिहास की कई घटनाओं के वास्तविक विवरणों को, शासकीय दस्तावेजों को और जानकार व्यक्तियों के मौखिक प्रमाणों के आधार पर विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों पर आधारित होकर के अकबरनामा को तैयार किया. अकबरनामा को 3 जिल्दों में विभाजित किया गया. ठीक, जो पहली 2 बुक्स थी, जो पहली 2 जिल्द थी वो इतिहास थी और तीसरी जिल्द थी, थर्ड जो बुक थी उसका नाम था आईने अकबरी. इन नेक्स्ट स्लाइड, डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट वॉल्यूम कंटेन्स the history of mankind from Adam to one celestial cycle of Akbar's life, which was 30 years. The second volume closed to in the 46th regnal year, which was the year in which that was 1601 of Akbar. The very next year, Abul Fazl fell victim to a conspiracy hatched by Prince Salim, and he was murdered by his accomplice by Bir Singh Bundela. प्यारे बच्चों, पहली जिल्द जो थी उसमें आदम से लेकर अकबर के जीवन के जो 30 वर्ष था तो उस तक का मानव जाति का इतिहास का वर्णन किया गया. दूसरे जिल्द में अकबर के 46वें वर्ष का जो शासन था 1601 में जो ख़त्म हो रहा था उस तक के इतिहास को लिखा गया. लेकिन अगले ही वर्ष क्या हुआ कि सलीम, जो राजकुमार सलीम थे,
उनके षड्यंत्र का शिकार हो गया अबुल फजल। अबुल फजल की हत्या सलीम के जो सहअपराधी थे वीर सिंह बुंदेला उसके हाथों हो जाती है। In this slide, we will know about the presentation and writing skill of Abul Fazl. Abul Fazl described all aspect of Akbar's empire. Okay, यहाँ अकबरनामा के बहुत सारे जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण थे अकबरनामा में वो लिखे गए। इसके साथ ही साथ तिथियों और समय के साथ होने वाले बदलाव का भी उल्लेख कि बिना अकबर के साम्राज्य में जो भौगोलिक स्थिति थी, सामाजिक स्थिति थी, प्रशासनिक स्थिति थी, सांस्कृतिक थी, सभी का विवरण बड़े ही बेहतरीन तरीके से अबुल फजल ने किया। आईने अकबरी में मुग़ल साम्राज्य को हिंदुओं, जैनों, बौद्धों और मुसलमानों की भिन्न भिन्न आबादी वाले मिश्रित संस्कृति वाले साम्राज्य के रूप में भी प्रस्तुत किया गया। अबुल फजल ने जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था वो काफ़ी अलंकृत भाषा थी, वो बहुत ही ऑर्नेट लैंग्वेज के तौर पर देखी जा रही थी। चूँकि इस भाषा के पाठों में आवाज़ भी ऊंची लगा करके बोला जाता था, उसमें लय भी होता था, उसकी जो कथन की जो शैली थी काफ़ी प्रभावशाली थी। इस तरह से देखा गया कि भारतीय फारसी जो शैली थी उसका दरबार में अब संरक्षण किया जाने लगा, उसको संरक्षण मिलने लगा। डियर स्टूडेंट्स, now we will see about the composition of Badshahnaama, which was compiled in the region of Shahjahan. A people of Abul Fazl, Abdul Hamid Lahori, is known as the author of the Badshahnaama. Emperor Shahjahan, hearing of his talents, commissioned him to write a history of his region, मॉडल ऑन द अकबरनामा। अकबरनामा की तर्ज पर ही बादशाहनामा लिखवाने के लिए अब्दुल हमीद लाहौरी को शाहजहां ने अपने दरबार में अब कमीशन किया। द बादशाहनामा इज़ द ऑफिशियल हिस्ट्री इन 3 वॉल्यूम्स ऑफ 10 lunar year each. Lahori wrote the first and second daftars comprising the first 2 decades of the emperor's rule, 1627 से 47 के बीच रहा। These volumes were later revised by Sadullah Khan, Shahjahan's wazir. Okay, infirmities of old age prevented Lahori from proceeding with the 3rd decade, which was then chronicled by the historians Waris. अबुल फजल का जो शिष्य था अब्दुल हमीद लाहौरी, बादशाहनामा के लिए लेखक के रूप में वो जाना जाता है। शाहजहां ने उसे अकबर नामा के नमूने पर अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया। बादशाह नामा भी सरकारी इतिहास है, उसकी भी 3 ही जिल्दें हैं, प्रत्येक जिल्द 10 चंद्र वर्षों का ब्यौरा देती है। लाहौरी ने बादशाह के शासन के पहले 2 दशकों पर पहला और दूसरा दफ्तर लिखा। इन जिल्दों के बाद में शाहजहां के वजीर सादुल्ला खान ने सुधार भी किया और बुढ़ापे की वजह से लाहौरी तीसरे दशक के बारे में न लिख सका, जिसे बाद में एक इतिहासकार जो वारिस था उसने इसको कंप्लीट किया। डियर स्टूडेंट्स, during the colonial period, British administration began to study Indian history because they wanted to know about culture, tradition, lineage, and to create an archive of knowledge about the subcontinent, which will help them to better understand the people and the cultures of the empire they sought to rule. अभी इसके बाद में साथ ही साथ क्या हुआ कि 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को स्थापित किया और उसने कई भारतीय पांडुलिपियों के इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट के संपादन, प्रकाशन और अनुवाद का जिम्मा भी अपने ऊपर में ले लिया। अकबरनामा और बादशाहनामा ये संपादित पाठांतर सबसे पहले कहाँ हुए? एशियाटिक सोसाइटी द्वारा 19वीं शताब्दी में प्रकाशित भी किए गए और वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद
20th सेंचुरी के बिगिनिंग टाइम में ही हेनरी बेवरिज द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया गया। बादशाहनामा के केवल कुछ ही अंशों का अभी तक अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। Dear students, we will see here about the ideal kingdom. Dear students, court chroniclers drew upon many sources to show that the power of the Mughal kings came directly from God. इसमें जो दरबारी इतिहासकार थे वो मुगल राजाओं को सीधे ईश्वर से शक्ति मिली है ऐसा बतलाने की वो कोशिश करते हैं। One of the legend they narrated was that of the Mongol queen Alankua, who was impregnated by a ray of sunshine while resting in her talent. इसमें बतलाया गया कि एक मंगोल की रानी अलनकुआ है। उसकी कहानी या दंत कथा के तौर पर बताई गई है कि जो अपने शिविर में आराम करते समय सूर्य की एक किरण द्वारा गर्भवती हुई और उसके द्वारा जन्म लेने वाली जो संतान थी वो एक दैवी प्रकाश का प्रभाव थी और इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी इसका प्रकाश जो था वो हस्तांतरित होने लगा था। अबुल फजल इंस्पायर्ड बाय अ फेमस ईरानियन सूफी शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी हु फर्स्ट डेवलप दिस आइडिया। और इसका आइडिया क्या था? इस दैवी प्रकाश का आइडिया क्या था? अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया देयर वाज अ हायरार्की इन विच द डिवाइन लाइट वाज ट्रांसमिटेड टू द किंग हु देन became the source of spiritual guidance for his subject. Dear students, Mughal paintings transmitted these ideas in a way that left a lasting impression on the minds of viewers. Mughal artists from the 17th century onwards began to portray emperors wearing the halo, which they saw on European paintings of Christ and the Virgin Mary to symbolize the light of God. प्यारे बच्चों, जो अलग अलग भिन्न भिन्न नजाति और धार्मिक समुदायों का जो समाविष्ट अलग अलग हिंदुओं, जैनों, जरथुस्ट्र और जो मुसलमान थे उनके आधार पर साम्राज्य के रूप में ये प्रस्तुत करते हैं क्रॉनिकल्स। और सभी की तरह ये शांति की भी बात करते हैं। Dear students, you will know about Sulh-e-Kul as well as the position of emperor in his dynasty. Mughal chronicles present the empire as comprising many different ethnic and religious communities, Hindus, Jainis, Zoroastrians, Muslims. As the source of all peace and stability, the emperor stood above all religious and ethnic groups, mediated among them, and ensured that justice and peace prevailed. Abul Fazl described the idea of Sulh-e-Kul as a cornerstone of enlightened rule. In Sulh-e-Kul, all religion and schools of thought had freedom of expression, but on condition that they did not undermine the authority of the state or fight among themselves. अबुल फजल जो सुलह-ए-कुल की बात बतलाते हैं वो सुलह-ए-कुल को बड़े आदर्श और प्रबुद्ध शासन की आधारशिला बताते हैं। सुलह-कुल की यूं तो सभी धर्मों और मतों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी बतलाई गई है, किंतु उसके पीछे एक शर्त रखी गई कि वे राज्य सत्ता को क्षति नहीं पहुंचाएंगे और न ही आपस में लड़ेंगे। तो इस तरह की जो बातें हैं ये सुलह-ए-कुल के माध्यम से बतलाई गई। Dear students, the ideal of Sulh-e-Kul was implemented through state policy. The nobility under the Mughal was a composite one comprising Iranians, Turanis, Afghans, Rajput, Deccanians, all of whom were given position and award purely on the basis of their service and loyalty to the king. Further, Akbar abolished the tax on pilgrimage in 1563 and jizya in 1564.
as the two were based on religious discrimination. Instructions were sent to officers of the empire to follow the precept of सुलह equal in administration. अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। 1564 में जजिया टैक्स को समाप्त कर दिया, क्योंकि ये दोनों कर धार्मिक पक्षपात पर आधारित थे और साथ ही साथ साम्राज्य के सभी अधिकारियों को प्रशासन में सुलह कुल के नियम का अनुपालन करने के निर्देश भी दे दिए गए थे। डियर स्टूडेंट्स, all Mughal emperors always gave grants to support and the building and maintenance of place of worship. They also helped when temples were destroyed during war. Grants were later issued for their repair, as we know from the reign of Shah Jahan and Aurangzeb, but it was not continued. During the reign of the latter, the jizya was reimposed on non-Muslim subjects. सभी मुसलमानों ने जितने भी उपासना स्थल हुआ करते थे उनके निर्माण, उनके रख रखाव के लिए काफ़ी सारा अनुदान भी दिया। यहाँ तक कि कभी कभी युद्ध के दौरान जब मंदिरों को नष्ट कर दिया जाता था तो बाद में उनकी मरम्मत के लिए भी अनुदान जारी कर दिए जाते थे। ऐसा हमें शाहजहां और औरंगजेब के शासन में पता चलता है, लेकिन बाद में औरंगजेब के शासनकाल में गैर मुसलमान प्रजा पर जजिया कर फिर से उन पर इम्पोज कर दिया गया था। डियर स्टूडेंट्स, we will see here about the social contract. Okay, Abul Fazl defined sovereignty as a social contract. The emperor protects the four essence of his subjects, namely life, jan, property, mal, honor, naam, and faith, deen, and in return demands obedience and a share of resource. अबुल फजल ने जो सत्ता थी उसको एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में, सामाजिक अनुबंध के रूप में परिभाषित किया। वो कहता है कि बादशाह अपनी प्रजा के 4 शत्रुओं की रक्षा करता है। पहला है जीवन, दूसरा है धन, तीसरा है सम्मान और चौथा है विश्वास, और इसके बदले में वह आज्ञा पालन और संसाधनों में हिस्से की मांग कहता है। केवल न्यायपूर्ण संप्रभु ही शक्ति और दैवी मार्गदर्शन के साथ इस अनुबंध का सम्मान कर पाते थे। Only just origin were thought to be able to honor the contract with power and divine guidance. A number of symbols were created for visual representation of the idea of justice. Okay. Now, students, we will know about the capital cities of Mughal dynasty. The heart of the Mughal empire was its capital city, no doubt. मुग़ल डायनेस्टी का जो हार्ट था, हृदय था, वो उसकी कैपिटल सिटी ही हुआ करती थी, क्योंकि वो वहाँ से पूरे इस वास्ट एम्पायर को कंट्रोल किया करते थे। इतना लार्ज और वास्ट एम्पायर था कि उसको कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी चुनौती हुआ करती थी। वेयर द कोर्ट असेंबल्ड, ओके, जो कैपिटल्स हुआ करते थे वहीं उनके कोर्ट लगा करते थे। द कैपिटल सिटीज ऑफ मुगल्स फ्रिक्वेंटली शिफ्टेड ड्यूरिंग द 16th and 17th century. Babur took over the Lodi capital of Agra. Though during the 4 years of his reign, the court was frequently on the move. During the 1560s, Akbar had the fort of Agra constructed with red sandstone carried from the adjoining region. 1560 के आसपास में अकबर ने आगरा के किले का निर्माण कराया। इससे आसपास के क्षेत्रों के जो खदानों से लाल बलुआ के पत्थर थे उनका इस्तेमाल करके इसको लाया गया था। और इस स्लाइड में ये आपको ये इन्फॉर्मेशन भी दी जा रही है कि बाबर ने लोदियों की राजधानी थी आगरा, उस पर भी अपना अधिकार कर लिया था। ये 1526 के आसपास की हम बात कर रहे हैं, जब बाबर ने यहाँ पर मुगलों की सत्ता को स्थापित किया था। डियर स्टूडेंट्स, in the 1570s, he decided to build a new
capital Fatehpur Sikri. Who decided? Akbar. Akbar decided to build new capital Fatehpur Sikri. One of the reason prompting this may have been the Sikri was located on the direct road to Ajmer, where the Dargah of Sheikh Moinuddin Chishti had become an important pilgrimage center. शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह उस समय एक बड़ी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल थी और मुग़ल बादशाहों के चिश्ती सिलसिले के सूफियों के साथ बड़े घनिष्ठ संबंध थे। तो अकबर ने भी सीकरी में जुम्मा मस्जिद के बगल में शेख सलीम चिश्ती के लिए एक सफ़ेद संगमरमर का मकबरा भी बनाने का वहाँ पर उसने आदेश दिया था। और फतेहपुर सीकरी को 1570 में इन्होंने अपनी राजधानी बनाने का भी निर्णय लिया। ऐसा निर्णय इस कारण भी हो सकता है कि सीकरी जो था वो अजमेर को जाने वाली एक सीधी सड़क पर स्थित था। आप ये फतेहपुर सीकरी के कुछ इमेजेस को देख सकते हैं। Dear students, the enormous arched gateway Buland Darwaja was meant to remind visitors of the Mughal victory in Gujarat. गुजरात में मुगलों की विजय की याद में इस बुलंद दरवाजे, विशाल मेहराबी प्रवेश द्वार बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया। In 1585, the capital was transferred to Lahore to bring the northwest under greater control. अब मुगलों ने 1585 में 1585 में उत्तर पश्चिम को और अधिक नियंत्रण में लाने के लिए राजधानी को लाहौर स्थानांतरित कर दिया और इस तरह 13 वर्षों तक अकबर ने इस सीमा पर बड़ी गहरी चौकसी बनाए रखी। ओके, ये 13 इयर्स तक इस फ्रंटियर को बहुत ही क्लोजली उन्होंने मॉनिटर करना शुरू कर चुके थे। Dear students, शाहजहां pursued sound fiscal policies and accumulated enough money to indulge his passion for building. In 1648, the court, army, household moved from Agra to the newly complete imperial capital शाहजहांबाद। 1648 में दरबार सेना और राजसी खानदान आगरा से नई निर्मित शाही राजधानी शाहजहांबाद चले गए। It was a new addition to the old residential city of Delhi with the Red Fort, the Jama Masjid, a tree-lined esplanade with bazaars, Chandni Chowk, and spacious homes for the nobilities. Dear students, we will know through this slide about daily routine of emperor. The emperor began his duty at sunrise with personal religious devotion or prayer and then appeared on a small balcony. बादशाह अपने दिन की शुरुआत जो है सूर्योदय के साथ करते थे, कुछ धार्मिक प्रार्थनाएं करते थे। इसके बाद वो पूर्व की ओर अपने मुख करके एक छोटे से छज्जे पर झरोखे में आ जाते थे और इसके नीचे लोगों की बड़ी भीड़ हुआ करती थी, जिसमें उनसे मिलने वाले जो सैनिक, व्यापारी, शिल्पकार, किसान, बीमार बच्चों के साथ औरतें, ये सब बादशाह की एक झलक पाने के लिए इंतज़ार करते थे। अकबर द्वारा शुरू की गई झरोखा दर्शन की जो प्रथा थी, इससे जनविश्वास को पैदा करने का एक भाव था। जनविश्वास के रूप में ये शाही सत्ता की स्वीकृति को और भी ज़्यादा विस्तार दे देता था। ये जो राजा थे 1 घंटा लगभग यहाँ झरोखे में बिताने के बाद अपने सरकार के जो प्राथमिक कार्य हुआ करते थे उसको वो देखा करते थे। इसमें वो राज्य के अधिकारी आते थे, वो अपनी रिपोर्ट्स लेकर के वहाँ आते थे, उनसे रिक्वेस्ट करते थे और करीब 2 घंटे तक ये बादशाह जो है दीवाने खास में अपनी निजी सभाएं, गोपनीय मुद्दों पर चर्चाएं करते थे। राज्य के जो वरिष्ठ मंत्री थे वो इनके सामने अपनी याचिकाएं रखते थे। कर अधिकारी जो कर कलेक्ट किया जाता था, टैक्स कलेक्ट किया जाता था, उसका हिसाब, उसका ब्यौरा देते थे और कभी कभी बादशाह जो थे वो उच्च प्रतिष्ठित कलाकारों के कार्यों को भी देखते थे। वास्तुकार जो थे उनके द्वारा बनाए गए कुछ नक्शे इमारतों के उसको देखते थे। इस तरह से
जो मुग़ल बादशाह हुआ करते थे, अकबर की स्पेशली बात करें तो वे अपने इस झरोखा दर्शन और प्रशासनिक कार्यों को इस तरह से पूरा मैनेज किया करते थे। आपके सामने ये इमेज है दीवाने आम की। ऑन स्पेशल ओकेजन such as the anniversary of accession to the throne, Eid, Shab-e-Barat, Holi, the court was full of life। जब भी ये इस तरह के त्यौहार होते थे तो पूरा का पूरा दरबार का माहौल जो है वो जीवंत हो उठता था। Perfumed candles sat in reach holders and palace walls festooned with colorful hanging made a tremendous impression on visitors। The Mughal king celebrated 3 major festivals a year: the solar and lunar birthdays of the monarch and Nowruz, the Iranian New Year on the vernal equinox। On his birthdays, the monarch was weighed against various commodities which were then distributed in charity। मुगल शासक वर्ष में 3 प्रमुख त्यौहार मनाया करते थे। सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के अनुसार शासक का जन्मदिन और वसंतागमन पर जो फारसी का जो नववर्ष होता है उसको बड़े ही बेहतरीन तरीके से उन शाही परिवारों में मनाया जाता था। उस पर काफ़ी खर्च भी होता था और इस तरह से हमें इसकी सब जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो इसकी जानकारियाँ हैं, ये बादशाह नामा में भी हमें इसको देखने को मिलती है। इसके अलावा कोई शादी विवाह जो होते थे वो भी काफ़ी खर्चीले होते थे, उन पर भी काफ़ी पैसे खर्च किए जाते थे, लेकिन उस दौरान काफ़ी साज सज्जा भी की जाती थी। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।